to all. I am Rupinder Kaur, Department of Hotel Management, RPIIT Campus, Karnal. Today I will discuss on safety and security in housekeeping department. Safety. Meaning of safety. It is the moral and legal responsibility of the hotel to protect its guests and their property against threats posed by human beings with a conscious intent to harm them. Safety and security are the two responsibility of the hotel managers. First, guests expect to sleep, meet, dine, and entertain in a facility that is safe and secure. Number two, housekeeping and front office personnel can help meet this guest expectation and in some cases make the difference in the property's safety and security system. Safety and security in housekeeping department. The two hotel department most likely to have the largest number of accidents and injuries. Number one is मेंटेनेंस एंड द अदर इज हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पर ज़्यादातर हमारे एक्सीडेंट्स के केसेस होते हैं, इंजरीज होती हैं एम्प्लॉयज़ को. One basis for the frequency is the sheer labor intensity for these two departments. In many operations, housekeeping and maintenance employ more people than another department. Number two, another reason lies in the fact that working in housekeeping or maintenance involves physical activity and equipment's use, both of which increase the risk of accidents and injury. दूसरा रीज़न ये रहता है कि हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में मोस्टली फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस के दौरान इस तरह की इंजरीज और जो एक्सीडेंट के रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं. To reduce the safety risk, the executive housekeeper must be aware of the potential safety hazards and develop a procedure to prevent the accident. जो हमारे एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर होता है उसकी ये ड्यूटी रहती है कि कम से कम हमारे वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को इंजरी हो, एक्सीडेंट्स हो, तो उसके लिए सेफ्टी हैज़ार्ड्स फॉलो किए जाते हैं और प्रोसीजर फॉलो किया जाता है to prevent the accident. Next, safety should be the top priority. Ongoing safety training program help ensure that safe conditions are the maintained in all work area. हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है सेफ्टी की कि कोई भी एम्प्लॉयज़ है उसे ड्यूरिंग शिफ्ट कोई भी इंजरी ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, मिनिमाइज एक्सीडेंट्स रहें, तो उसके लिए सेफ कंडीशंस फॉलो की जाती है, मेंटेन की जाती है सभी वर्किंग एरिया में. Number 3, to develop a program, management must be aware of the law and that regulate the work environment and more specially how those law affect the housekeeping personnel. इसीलिए जो हमारी मैनेजमेंट है वो भी इसके लिए अवेयर रहती है कि एम्प्लॉयज़ को इंजरीज ना हो, एक्सीडेंट्स कम हो वर्किंग आवर्स में, तो उसके लिए वो सेफ्टी और लॉस का पूरा ध्यान रखते हैं. एम्प्लॉय मोरल and management concern. Unsafe working conditions have a negative effect on the employee morale. If employees are preoccupied with the hazardous condition in the workplace, they will not be able to perform the best of their ability. कि अगर एम्प्लॉयज़ के काम करने की जो कंडीशंस हैं, वर्किंग कंडीशंस हैं, वो अच्छी नहीं है, जैसे कि बहुत ही डार्क एरिया है, प्रॉपर लाइट नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है जहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो इस तरह, और दूसरा उनका सिक्योर नहीं है, उनको कोई फर्स्ट एड नहीं मिलती, उसके लिए कोई उनके पास सिक्योर उसके सेफ्टी नहीं है उनकी हेल्थ के लिए, तो इन सब चीज़ों से एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका मोरल कम हो जाता है, उनको काम करने में अच्छा नहीं लगता. उन्हें हमेशा ये रहता है कि अगर कोई रिस्क लेकर काम किया और मुझे चोट लग गई, उस दौरान मेरी कोई भी यहाँ पर फर्स्ट एड नहीं होगा, मेरा ध्यान नहीं रखा जाएगा, मुझे छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एम्प्लॉयज़ के मोरल को कम करती हैं. वो अपने जगह पर जहाँ पर वो काम करता है वहाँ पर वो इनसिक्योर फील करता है, तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ को सिक्योर करने के लिए उनकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए सारी हमें प्रिकॉशंस यूज़ करनी चाहिए ताकि एक वर्कर अपना बेस्ट दे पाए. For most part, it is difficult to motivate employee until the unsafe conditions are corrected. तो अगर ऐसे कंडीशंस होंगी तो मोटिव भी नहीं उन्हें किया जा सकता एम्प्लॉयज़ को. इसीलिए हमारा बेस्ट यही रहता है कि हम एम्प्लॉयज़ को अच्छा इन्वायरमेंट दें, काम करने के लिए बिल्कुल बेस्ट उनको कंडीशंस दें. Number 3, one of the management top concern should be for the health and welfare for the employees. दूसरा हमारा मैनेजमेंट का भी उसके साथ वेलफेयर या हेल्थ के रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ के साथ
कंसर्न होना चाहिए कि किसी एम्प्लॉय को अगर ड्यूरिंग शिफ्ट कोई चोट पहुंचती है, कोई इंजरी होती है, तो उसके लिए मैनेजमेंट उसके लिए कुछ अपना उसको हेल्प करे। ठीक है, इससे एम्प्लॉयज़ को थोड़ा कंसर्न रहता है अपनी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, प्लस वो फ्री होकर अपने बेस्ट दे पाते हैं अपने काम के लिए। एम्प्लॉय आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ ए होटल हैज़। कोई भी प्रॉपर्टी है, एम्प्लॉयज़ हैं, उसके एसेट्स होते हैं। इफ़ अ मैनेजर वांट एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस, दे मस्ट ट्रीट एम्प्लॉय फेयरली एंड विद रिस्पेक्ट। अगर एक मैनेजर या मैनेजमेंट ये चाहती है कि उसके एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, तो एक एम्प्लॉय अच्छा काम करे, तो क्वालिटी दे अपने काम में, तो उसके लिए ये है कि एम्प्लॉय के रिगार्डिंग वो फेयर होने चाहिए। Respect for the employees' right to work in a safe and hazard-free environment is a good place to begin. तो इसीलिए हमारा ये एक ड्यूटी बनती है एक मैनेजर की और एक मैनेजमेंट की कि उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ के लिए काम जब हम लेते हैं तो उन्हें सेफ इन्वायरमेंट दिया जाए, हैज़ार्ड फ्री इन्वायरमेंट दिया जा सके, ताकि वो अपना काम बेस्ट कर पाएँ। Security. Security refer to the freedom from fear, anxiety, and doubt involving ourselves, as well as to the protection and defense against the loss of theft of guest, employee, company, property, and prevention of the other emergencies. Committee responsibilities. Development of the security handbook and the design of training and awareness program. Number 2, monitoring, analyzing, and suggesting the solution for returning security problem. Number 3, maintain record on such incidents that theft, vandalism, and on-site violence. Next, conducting sports security audit and property inspections. Next, investigating security incidents. Next, maintain open lines of communication with all the local police department. These are the responsibility of the security committee. During the theft, guest theft, most hotels assume that guests will take items such as matches, pens, shampoo, ashtray, and shaving kit. For most part, these items are provided for the guest convenience and are actually a form of advertising used by the hotel. कई बार क्या होता है कि कुछ जो थेफ्ट होती हैं वो गेस्ट के द्वारा होती हैं, जैसे कि मैच बॉक्सेस हैं, पेन्स हैं, शैम्पू हैं, एस्ट्रे, सेविंग किट, ये इन सभी होटल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और गेस्ट की कन्वीनियंस के लिए ये सब कुछ उसके रूम में अमेनिटीज़ के तौर पर दिया जाता है। इसके थ्रू गेस्ट अपना एक लोगो उन चीज़ों के ऊपर प्रिंट करवा देता है, जिससे होटल की एडवर्टीजमेंट भी होती है। और कई बार यही सामान, छोटा सा सामान, गेस्ट अपने साथ ही ले जाता है। However, towels, bathrobes, trash bins, and pictures are not part of the marketing strategy and are not meant to be taken by the guest. इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि टावल्स हैं, ट्रैश बिन्स हैं, पिक्चर्स हैं, होटल के रूम में जो लगी होती हैं, ये हमारा मार्केटिंग हम इसके थ्रू तो नहीं कर पाते, इन पे कोई लोगो नहीं होता, बट ये कई बार ये चीज़ें भी गेस्ट जो है वो अपने बैग में डालकर ले जाता है। व्हेन दीज आइटम टर्न्स अप मिसिंग, इट कैन बी एड अप टू ए लार्ज एक्सपेंसेस फॉर ए हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ हमारी गुम हो जाती है, थेफ्ट हो जाती है, तो उसके लिए बहुत होटल के लिए एक भारी नुकसान है। To reduce the theft of these items, some properties keep count of the number of the amenities inside the room. इसीलिए जो इस प्रकार की हमारी amenities हैं, जैसे कि बाथ टाल्स की बात की है, पिक्चर्स की बात की है, इन चीज़ों की थेफ्ट ना हो, इनको रिड्यूस करने के लिए वो क्या करते हैं, नंबर में जितने भी हम रूम ऑक्यूपाइड करते हैं उनके अंदर ये सभी चीज़ों को काउंट किया जाता है कि नंबर ऑफ अमेनिटीज़ हमने कितनी इशू की हैं एक पर्टिकुलर रूम्स में। और जब भी कोई गेस्ट जाता है, रूम से वैकेंट होता है रूम, या उसकी जब क्लीनिंग की जाती है रूम की, तो उस दौरान जो हमारा रूम अटेंडेंट है वो सारी चीज़ें नोट करके रखता है कि हाउ मच एमेनिटीज़ आर मिसिंग इन दिस रूम पर्टिकुलर रूम्स। When the guest request for additional item, it is noted at the front desk. कोई भी गेस्ट अगर एडिशनल रिक्वेस्ट रखता है कि उसे शेविंग किट चाहिए, शेविंग किट चाहिए, हेयर ड्रायर चाहिए, तो ये सभी चीज़ें फ्रंट डेस्क नोट कर लेता है अपने पास। The room attendant too notes how many items are in the room when cleaning the next day. इसीलिए रूम अटेंडेंट ये हमेशा ध्यान रखता है कि जब भी वो रूम क्लीन करता है नेक्स्ट डे या उसी दिन, तो वो सभी चीज़ों को नोट करता है। रूम अटेंडेंट ability to spot missing item
may allow the hotel time to charge the guest for items that have been taken. एक रूम अटेंडेंट अगर ये सभी चीज़ें नोट कर कर फ्रंट और डेस्क पे बता देता है कि रूम में ये नंबर ऑफ आइटम्स मिसिंग हैं, तो फ्रंट डेस्क ये भी जो आइटम मिस हैं उनका पर्टिकुलर प्राइस उसके बिल में ऐड कर देता है गेस्ट के. Another strategy, some hotel place items such as the towel, bathrobes and leather stationery folder and the like are on the sale their gift shop. इसलिए कई बार होटल एक ये भी स्ट्रेटजी करता है कि वो इन सब चीज़ों के लिए एक पर्टिकुलर शॉप बना देता है, गिफ्ट शॉप बना देता है कि अगर आपको कुछ भी ऐसा स्टेशनरी आइटम चाहिए तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं. बेसिक अमेनिटीज़ टॉवल वगैरह तो उनके रूम में होते हैं, बट एक्स्ट्रा कोई भी डिमांड करता है, अमेनिटीज़ वो मांगता है, तो उसके लिए उन्हें गिफ्ट शॉप के बारे में बता दिया जाता है कि आप परचेज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर शॉप से. दिस में रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ द थेफ्ट सिंस गेस्ट हैव द ऑप्शन ऑफ परचेजिंग दिस आइटम. इन सब बातों से ये क्लियर हो जाता है कि गेस्ट मतलब कि चोरी कम हो जाती है, थेफ्ट की जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, और उसके पास ऑप्शन, गेस्ट के पास एक ऑप्शन यही रहता है कि वो अपनी जो भी पर्टिकुलर आइटम चाहिए वो उसे परचेज कर ले. Also having these items on the sale helps set a standard price that can be levied against the guest for missing items. Other helpful idea to reduce the guest theft. यूज़ अ फ्यू मोनोग्राम्ड आइटम एज पॉसिबल. तो जितने भी हमारी मोनोग्राम्ड आइटम्स होते हैं, मतलब कि जो भी हम लोगो लगाते हैं अपने होटल का पर्टिकुलर आइटम्स के ऊपर, वो हमें लगाना चाहिए. मोस्टली हमें कुछ चीज़ों पर लगाना चाहिए, हर एक पे नहीं लगाना चाहिए. कीप स्टोरेज रूम क्लोज एंड लॉक्ड. जो हमारा स्टोर रूम है उसे हमें क्लोज रखना चाहिए और उसे लॉक रखना चाहिए. अफिक्स अ बोल्ट और गेस्ट रूम आइटम्स एंड फिक्चर टू अप्रोप्रिएट सर्फेसिस. और जो भी हमारी पर्टिकुलर चीज़ें हैं हमें उन्हें अफिक्स कर देनी चाहिए पर्टिकुलर एरिया के लिए. जैसे कि हमारे मिरर्स हैं, हम कॉर्नर मिरर्स लगाते हैं, फेस मिरर लगाते हैं स्पेशली, तो वह हमें एक जगह पर फिक्स कर देना चाहिए ताकि उसे कोई भी जल्दी से कैरी ना कर सके. नेक्स्ट, सिक्योर विंडो. विंडो हैं वो हमारी सिक्योर होनी चाहिए, उनके ऊपर प्रॉपर बाहर से ग्रिलिंग होनी चाहिए. थैंक यू. नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.